Shri Chaitanya Manodharastam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaryam Dadati Svatamritam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamanam Shri Guna Vaishnavamsa Shri Rupam Shadjatam Shahaganaguradam Tam Tam Sajivam Sadhitam Savadhitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Lalita Shri Shaktamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Lokeshwar Bhaktikanta Radha Namaste Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwapanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhubhyevacha Patitam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vinara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावलिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम सप्तम सर्ग में 10th chapter, 10th verse, Prahlad Maharaj Prarthana. Om Namo Bhagavate Tubhyam Om Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Purushaya Mahatmane Hare Adbhuta Simhaya Hare Adbhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Brahmane Paramatmane. O my Lord, full of 6 opulences, O Supreme Person, O Supreme Soul, killer of all miseries, O Supreme Person in the form of a wonderful lion and man, let me offer my respectful obeisances to you. हे मेरे भगवान, ऐश्वर्य से भरे हुए ये सर्वोच्च व्यक्ति, हे परमात्मा, सभी दुखों के संहार, ये सर्वोच्च व्यक्ति एक अद्भुत शेर और मनुष्य के रूप में मैं आपको अपना समान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय Namaste Narasimhaya आह्लाददायिने Adhayine हिरण्यकशिपु वक्ष Hiranyakashipu Vaksha शूलङ्कानखालये Siratankanakaye. हिंदी में बोलूंगा कोशिश। एक इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति पूरी तरह से दर्शन में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुद को गलत समझ सकते हैं। वह कह सकते हैं मैं एक हिंदू हूँ, मैंने कहा लेकिन वह खुद को एक शरीर मानता रहेगा और तब ज्ञान प्रमाणिक नहीं हो सकता। समाज के नेता इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गुलामी और भी बढ़ रही है। अब भारत में हर जगह मांस खाए जा रहे हैं, गायों को मारा जा रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। प्रश्न उठते है कि भारत इतने ज्ञान दर्शन धर्म परायण होते हुए भी विश्व को क्यों नहीं बदल सकता। इससे भी अधिक पश्चिमी दुनिया भारत को प्रभावित करने लगी है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमारे पास शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। हमें केवल शास्त्रों को ही नहीं जानना चाहिए, अपितु स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भौतिक परिणामों से परे है। तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं को जान ले और शास्त्रों से इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसके पास शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति। सो दिस इज ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और यू कैन से कृपा। और प्रहलाद महाराज उपदेश देने लगे अपने सहपाठियों, क्लासमेट, स्कूलमेट्स, असुरों के पुत्र के लिए। प्रहलाद महाराज ने कहा यदि कोई व्यक्ति इस चिंता में डूब रखते हैं कि परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाए,
तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि यह सोचते हैं कि अधिक धन कैसे जमा किया जाए। वह जानते हैं कि यदि वह किसी और की संपत्ति हड़प लेते हैं तो उसे राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, और मृत्यु के बाद यमराज के कानून के अनुसार वैसे भी धन के लिए वह लगातार दूसरों को धोखा देते हैं। देखिए, एक 5 साल का लड़का ऐसी बातें करते हैं, हाई फिलोसफी, और अब यह पूरी दुनिया में हो रहा है, इसलिए दुनिया में इतनी चिंताएं है, युद्ध है। लाइक मैं रूस से हूँ, my country now war is there, many people left my country. मेरे प्यारे दोस्तों, असुरों के पुत्र प्रहलाद महाराज ने भौतिक दुनिया में यहाँ तक कि जो शिक्षित माने जाते हैं वे भी अपने और दूसरों के बीच अंतर करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे केवल अपने पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं, फैमिली लाइफ। उनके पास एक संकीर्ण दिमाग है, जिसका अर्थ है कि वे केवल यह सोचते हैं कि अपने परिवार को सभी आवश्यक चीजें कैसे प्रदान करें। ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं दिखा पाते और इसलिए मोहग्रस्त होकर सदैव ज्ञान के अंधकार में ही रहते। कलयुग में वैदिक ज्ञान का अभ्यास करना अच्छी है। लोग वेदों में निराश हो सकते हैं, इसलिए बुद्ध ने वेदों को खारिज कर दिया कि मैं इतने सारे लोग बहुत भी हो गए हैं, वेदों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि स्वयं वेद हमें पूर्णता प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे। और बुद्ध यह जानते थे, केवल भक्ति ही वास्तव में व्यक्ति को पूर्णता सुख की ओर ले जा सकती है। इस भक्ति मोर इम्पोर्टेंट। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री थे। वे दर्जनों भाषाएं जानते थे, वे धनी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और त्याग दिया और भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गए और पूछा, क्या मैं किन्ने अमाय किन्ने में जरिता पत्र, मैं कौन हूं? मैं भौतिक संसार में 3 प्रकार के कार्य क्यों सकता हूं? इस तरह की शिक्षा एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यदि वह नहीं पूछता मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह केवल पार्श्व प्रवृत्ति दिख रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे व्यक्ति बिल्ली या कुत्ते की तरह होते हैं। डॉग्स एनिमल्स, कैट्स एंड डॉग्स सिविलाइजेशन प्रभुपाद से। They don't serving God, they serving dog. God, dog. उसकी शिक्षा क्या मतलब है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, और ये उनके सहपाठियों के लिए उनके पहले शब्द थे, कौमारम आचरित प्रज्ञो। मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी बनना चाहिए और वास्तविक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पहले एक आश्रम की जरूरत है, तब वह समझ सकते हैं कि वह शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय है और उसके अनुसार कार्य करता है। But first thing is आश्रम, very important। भारत में लोग जानते हैं कि मैं शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय हूं, लेकिन यह ज्ञान लोगों को सफलता नहीं दिलाता। इसलिए लोगों को आत्मा की मूल स्थिति को प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं मूल रूप से कौन हूं, इसलिए वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है, दैवी वर्णाश्रम। लेकिन वर्णाश्रम धर्म क्या है? दैवी वर्णाश्रम धर्म। 5 साल का बालक प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कहते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान को समझने और मुक्ति पाने के लिए एक निश्चित समय पर पारिवारिक जीवन को त्याग देना चाहिए और दुनिया को त्याग देना चाहिए। यह त्याग का मार्ग है। दिस इज वर्णाश्रम धर्म। यही वर्णाश्रम धर्म है और इस शिक्षा के साथ जीवन की शुरुआत करना सबसे अच्छा है।
It's Nivriti mark. Actually, this is Varnashama Dharma. प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे मित्रों, भगवान के परम व्यक्तित्व के ज्ञान के बिना दुनिया के किसी भी देश में कोई भी कभी भी पदार्थ के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जो लोग भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते वे भौतिक प्रकृति के नियमों के नियंत्रण में हैं। ऐसे लोग केवल कामुक सुखों में लिप्त होते हैं और मुख्य चीज जिसके लिए वह प्रयास करते हैं वह महिलाएं हैं। कामुक पुरुष आकर्षक स्त्रियों के हाथ का खिलौना मात्र है, उनके बच्चे पोते और पोते हैं। इस प्रकार सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति के कारण ये लोग भौतिक अस्तित्व के गुलाम बन जाते हैं। जो लोग पारिवारिक जीवन से बहुत अधिक जुड़े होते हैं उन्हें असुर कहा जाता है। इस प्रकार महाराज ने कहा, सो तो असुर कौन है, राक्षस कौन है? जो बहुत अधिक आसक्त है। It is बहुत अधिक, not आसक्त है, but अधिक आसक्त है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि अत्यधिक आसक्ति अच्छी नहीं है। किसी तरह की प्रतिबद्धता की जरूरत है। आसक्ति के बिना हम एक परिवार शुरू नहीं कर सकते और बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। ओके, वी नीड कुछ आसक्ति चाहिए, लेकिन अत्यधिक आसक्ति से असुरिक गुण उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आप असुरों के बीच पैदा हुए हैं, उनसे दूर रहें और सभी देवताओं के मूल भगवान नारायण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सुरक्षा की तलाश करें। केवल नारायण के बाद की जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए। हाँ, हम असुरों के बीच पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रहलाद करते हैं कुछ नहीं, बस असुरों से दूर रहो। इसका अर्थ है निकटता से संवाद न करें। इसका अर्थ है इस व्यक्ति को अपने हृदय में प्रवेश न करने दें। That is how we should live in this society. Not allow these materialistic people enter into our heart. यदि हम भौतिकवादी समाज में रहते हैं, हम राक्षसों के संपर्क में आते हैं, असुरों के संपर्क में आते हैं, हम असुरों को सुनते हैं, हम उसी समाज में रहते हैं, लेकिन हमारे दिल में हमें उनके साथ अंतरंग नहीं होना चाहिए। हम भौतिकवादियों के लिए अपना दिल नहीं खोलते हैं, हम उनके हितों को साझा नहीं करते हैं। ये महिलाएं और पैसे है, this is their thinking only women, money, 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 brighter than sun, sweeter than honey. हमारे अलग अलग मूल्य है। असुरों के पुत्र, देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान नारायण सभी जीवित प्राणियों के परमात्मा है, उनके मूल पिता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने से नहीं रोक सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा है या बूढ़ा, वह सदैव कृष्ण भवनामृत का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में किया जा सकते हैं। जीवात्मा और परम भगवान एक दूसरे के साथ शाश्वत संबंध में है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। तो कहा जाता है कि प्रभु को संतुष्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। It's very easy. Give pleasure to Krishna, very easy. So small on the earth, very small, coming to us. छोटा रूप में भगवान, आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं तो आपको अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है, और भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। But it is difficult. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, 16 rounds. Difficult, no? Not difficult. Even 64 rounds very small for him. I want to give all life to him.
It's not enough. He wants more love. So, यदि आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं तो आपको अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है और भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। शुद्ध भक्ति सेवा से कोई क्यों नहीं थकता? प्रभु भगवान हृदय में से ही है और इसलिए आपको इस तथ्य को महसूस करने की आवश्यकता है। हम इसे पूज्य के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम के माध्यम से। लेकिन यह क्या है? विष्णु स्मरणम, विष्णु कीर्तनम, महिमा, भगवान ग्लोरी। हमें भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना है, हमें भगवान के गुणों, उनके नाम, लीलाओं को जानना और वर्णन करना है और यह कठिन नहीं है और इसे करने के लिए किसी शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं है। ये कुछ ज्ञान नहीं है। बेशक हम कहते हैं कि यह ज्ञान है भक्ति ज्ञान। भक्ति ज्ञान स्पेशल ज्ञान, how to give pleasure to him। लेकिन we can say भगवान इस विषय विग्रह, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हम इन गुणों की महिमा करते हैं, हम इन गुणों की पूजा करते हैं और जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हम भगवान के समान गुण प्राप्त करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तस्म ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा प्रदापिता। यस, भागवत गीता में। इसलिए नारायण को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं या हर व्यक्ति कर सकते हैं, होशपूर्वक या अनजाने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भक्ति सेवा में संलग्न कर सकते हैं भले ही वे नहीं जानते कि भक्ति सेवा क्या है। उदाहरण के लिए आपके माता पिता कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये बौद्ध है, लेकिन यदि वे आपसे असक्त है तो वे धीरे धीरे मांसाहार छोड़ सकते हैं और एक मंत्र का जप करना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार वे भक्त बन जाते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत ही असामान्य बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज ने अपने मन की बात का रहस्य खोल दिया। सुनो प्लीज। सबसे पहले उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि वे एक ब्रह्मपूर्ण जीवन जी रहे हैं और अब वह उस रहस्य को प्रकट करते हैं जो उसके हृदय में है। भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, सर्वोच्च नियंत्रक, अचूक और कभी थके नहीं, सभी जीवित प्राणियों, पौरों और अन्य अचल प्राणियों में भगवान ब्रह्म तक मौजूद है, जो कि सबसे बड़ी रचना है। यहाँ महाभागवत का दर्शन प्रकट होता है। प्रहलाद महाराज भागवत है, उसके विचार। इसके अलावा भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व भौतिक जगत और उसके तत्वों की विभिन्न कृतियों में, महत्त्व में और भौतिक प्रकृति, सत्व गुण, रजगुण और तमगुण में मौजूद है। भगवान व्यक्त पदार्थ और मिथ्या अहंकार में भी है, जब भगवान एकमात्र है, वे हर जगह मौजूद है। भगवान एक है और वे स्वयं में व्याप्त है, स्वयं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वे सभी कारणों के कारण है और दिव्य परमात्मा है, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं और जीवन की गतिविधियों की देखरेख करते हैं। उसमें वह सब कुछ समाहित है जो मौजूद है और वह भीतर से सब कुछ व्याप्त करते हैं। हालांकि प्रभु का पूरी तरह से वर्णन करना असंभव है। कोई विशेष भगवान का वर्णन नहीं करती है। वर्णन करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं हिंदी बोल कोशिश करता हूँ। मेरे मूल रशियन भाषा, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को बोलने के लिए, सर्वोच्च भगवान की इस ज्ञान को बोलने के लिए संस्कृत सहित ब्रह्मांड में कोई भी भाषा नहीं है।
We cannot find sufficient language to describe this absolute truth. सुनिए, दूसरे शब्दों में भगवान ऐसे ऊर्जा पैदा करते हैं जो उन्हें छिपा सकती है। हालांकि भगवान हर चीज में है, हम भगवान को नहीं देख सकते। जीव इंद्रिय वश विषयों को भौतिक इंद्रियों के साथ देखते हैं। इंद्रिय विषय माया की रचना है और भाव माया की रचना है, और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम इंद्रिय विषय को इंद्रिय आंखों के साथ देखते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं देखते हैं। इसलिए मेरा युवा मित्र प्रहलाद महाराज ने कहा, असुरों के पुत्र इस तरह से कार्य कारण की परम भगवान को प्रसन्न किया, जैसा कि जो सभी भौतिक अभिधारणों से ऊपर है। अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को फेंक दो और अपने आसपास के लोगों को मित्रों और शत्रुओं में विभाजित मत करो। Don't see difference between enemy and friends. सभी प्राणियों के प्रति दयालु और दयालु बनो, उन पर दया करो और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रभु की सेवा करना सिखाओ। फिर वह कहते हैं, कमाल है, ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ज्ञान हो सकते हैं और साथ ही वह व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, यह भारत में हो रहे हैं। भारत में सभी लोग बहुत पवित्र हैं, बहुत पुण्यवान हैं। भारत में हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। सब कोई ना कोई तत्व ज्ञान तुमको समझेंगे। Everyone will speak to you philosophy, you will ask. और भारत को हर आदमी डॉक्टर है। सेहत के मामले में सभी आपको सलाह देंगे। If you ask about health, everyone will speak to you. लेकिन सलाह देने वाले लोगों की जिंदगी देखिए, वे बीपी थे। Anyway, we see everyone guru, everyone doctor, but people suffering. This problem. So, और प्रहलाद महाराज ने यहाँ कहा कि जो दिव्य प्रेम से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उससे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के लाभों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमसे पूछे जाए कि आध्यात्मिक और भौतिक क्या है, तो हम कहेंगे केवल भक्ति सेवा ही आध्यात्मिक और शुद्ध है। केवल सेवा, भक्ति सेवा, भक्ति के अलावा बाकी सब भौतिक है। सो मंचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं समतीत्यैतं ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसे कहा जाता है कि यह स्वयं हमारी सेवा नहीं है, वह गतिविधि है जो प्रभु को संतुष्ट करती है, बल्कि वह निर्णय है जो हम अपने हृदय में करते हैं। मैं भगवान की भावनाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको अपने दिल में निर्णय लेना होगा। हम सफल होते हैं या असफल, यह मुख्य बात नहीं है, यह गौण है। प्रभु हमें हृदय के भीतर से देखते हैं। यदि कोई केवल कृष्ण की सेवा करने की निर्णय करते हैं, तो भगवान पहले से ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अभी तक संकीर्तन में नहीं गए हैं, लेकिन उसने तय किया कि भाग जाएगा, तो उसे पहले से किए एक निश्चित शक्ति समर्थन प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अभी तक ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, लेकिन पहले से ही यह तय कर चुका है कि वह बन जाएगा, तो उसे इसके लिए एक निश्चित शक्ति प्राप्त होगी। धर्मा सुनुष्ठिता पुंसम विश्वक्से न कथासुया नत्पादेत यजिरातिम श्रमये वही केवलम। It's very important thing. अंत में जो कुछ भी करते हैं उसे श्रवण में, कृष्ण कथा सुनने में रुचि जगानी चाहिए। यह भक्ति सेवा की शुरुआत है। असुरों के पुत्र ने प्रहलाद की बात सुनी और उनके पास एक प्रश्न था। प्रहलाद को सब कुछ कैसे पता है? प्रहलाद अभी 5 साल का है, वही छोटा, वह सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वे बच्चे थे। बच्चे का दिमाग दूषित नहीं होता, बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं। शायद लाइक से शिक्षा अभी तक बच्चों के दिलों में प्रवेश नहीं कर पाए है, और बच्चे केवल बड़ों की इच्छा के प्रति
आज्ञाकारी है, इसलिए बच्चों के अपने रहस्य होते हैं। रहस्य यहाँ प्रहलाद इस ज्ञान को किसी गुप्त स्रोत से सुने हुए रहस्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बहुत साजिश है और इसी जिज्ञासा के साथ यह अध्याय समाप्त होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, परम भगवान नारायण सभी जीवों के मित्र और शुभ चिंतक ने इन आध्यात्मिक सत्यों को महान ऋषि नारद को बताया। नारद जैसे संत की कृपा के बिना इस पवित्र ज्ञान के रहस्यों को भेदना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु नारद के उत्तराधिकारी नारद की शरण लेते हैं, वह निश्चित रूप से इसे समझने में सक्षम होगा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मुझे महान ऋषि नारद मुनि से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो निरंतर भगवान की सेवा कर रहे हैं। यह ज्ञान जिसे भगवत धर्म कहा जाता है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। यह तर्क और दर्शन पर आधारित है और भौतिक संदूषण से पूरी तरह मुक्त है। क्लासमेट ने पूछा, हम बचे हैं, हम अपने गुरु शांत और अमर्क के अधीन है। शांत अमर्क शुक्राचार्य बच्चों, और आप प्राय अपने पिता के महल में रहते हैं, आप नारद मुनि को कैसे सुन सकते हैं? एक जो सवाल है। जब हम एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर यह प्रश्न सुनते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु से मिलने के लिए भाग्यशाली है, लेकिन हमें गुरु से कैसे मिल सकते हैं? हमारे पास मैपुर वृंदावन जाने की समय नहीं है, so much busy only staying in Sikkim, so how कैसे? और प्रहलाद महाराज वर्णन करने लगे कि वे नारद मुनि को कैसे सुन सकते हैं। उनके हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा राक्षस बनने और अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गए थे। तब इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने उनकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। सो वे कयाधु को मारना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें ऐसे करने से मना किया। उन्होंने कहा कि कयाधु के गर्भ में महाभागवत है। प्रहलाद महाराज महाभागवत है, जो एक महान भक्त है। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुरू किया जब वे अभी भी अपनी मां के गर्भ में थे, और प्रहलाद एक महान भक्त बन गए। तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कहते थे, मुझे यह ज्ञान क्यों मिला? मैं इसके लायक नहीं था, यह मेरे पास बिना किसी कारण के आया। यह कृपा है, नारद मुनि की कृपा। भक्ति हमारे कर्म पर निर्भर नहीं करती है। कर्म का कारण अतीत में किए गए अच्छे या बुरे कर्म है, लेकिन भक्ति से ही भक्ति का जन्म होते हैं। जिसके पास भक्ति है वह केवल भक्ति फैला रही, और इसका कोई भौतिक कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु हम सब पर बहुत दयालु है। भगवान बहुत दयालु है। हम तीन अवस्था में होते हैं, या तो जागृत अवस्था में होते हैं, या गहरे नींद में, वे स्वप्नों के साथ। लेकिन आत्मा की वो चौथी अवस्था परलौकिक अवस्था में है। जब हम भक्ति का अभ्यास शुरू करते हैं तो हम इस चौथी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज, तुरीय अवस्था। तुरीय इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। प्रहलाद महाराज इस बारे में अपने सहपाठियों से कहते हैं, तुम्हें कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहिए। आपको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। नारद मुनि ने जारी रखा। राक्षसों के पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के आध्यात्मिक निर्देशों की सराहना की और उन्हें पूरी दिल से स्वीकार किया। उन्होंने अपने स्कूल के शिक्षकों शांत और अमर्क द्वारा पढ़े गए भौतिकवादी विज्ञानों को अस्वीकार कर दिया। श्री प्रभुपाद भाष्य में लिखते हैं, तब होता है जब प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त उपदेश देते हैं। यदि एक भक्त में सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, यदि वह कृष्ण चेतन में गंभीर है और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं,
तो प्रहलाद महाराज की तरह जिन्होंने नारद मुनि से प्राप्त निर्देशों को प्रचार किया, ऐसे बात निश्चित रूप से प्राप्त करेगा उपदेश में सफलता। और उसके बाद वर्णन किया गया है कि कैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से क्रोधित हो गया। इस बारे में हमने गुरुवार को विस्तार से बात की। हिरण्यकशिपु कहते हैं, प्रहलाद तुम जानते हो दुष्ट कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोगों में ग्रह कंपने लगते हैं और उनके शासक भय से कंपने लगते हैं। किसने तुम्हें इतनी ताकत दी कि तुम बिना किसी डर के मेरे इच्छा के उल्लंघन करने की हिम्मत कर सके? और प्रहलाद उत्तर देते हैं, यह शक्ति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। और वह अपने पिता को ठीक वही निर्देश देते हैं जो उसने अपने सभापतियों को दिया था। The same thing he said. मेरे पिता कृपया अपने असुरी मानसिकता को त्याग दे, दूसरों को दुश्मनों और मित्रों में मत बांटो, सबके साथ समान व्यवहार करना सीखे। निरंकुश मांग के अलावा जो आत्मा को गलत रास्ते पर ले जाता है, इस दुनिया में हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। जब कोई व्यक्ति सभी जीवों की समानता को देखने लगता है, इक्वल विजन, तो वह भगवान की पूजा करने में सिद्ध हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद को अब अपने पिता और अन्य जीवों के बीच अंतर नहीं दिखाई देते हैं। उनके लिए सब कुछ आत्मा है और उनका कार्य कृष्ण भावनाभावित होने में उनकी सहायता करनी है। जब हम एक साधु प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास आते हैं, इफ यू कम टू स्पिरिचुअल मास्टर, रियल साधु गुरु, तो वे हमारे शरीर को नहीं देखते कि नेवर सी बॉडी, ही इज सीइंग यू पार्टिसिपेटिंग इन कृष्ण लीला, ही सीइंग यू। वह हमारे आत्मा को देखते हैं। लेकिन गुस्से में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत जोर से डांटा। अपशब्दों की लगातार बहुचार करते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई, शाही सिंहासन से कूद गए और हिंसक रूप से अपनी मुट्ठी से स्तंभ पर प्रहार किया। उस क्षण स्तंभ से एक भयानक गदगदाहट सुनाई दी, जिससे ऐसा लगा कि ब्रह्मांड का खोल फट गए हैं। एक प्रलौकिक ध्वनि थी, ओम ओम, very mantra coming from स्तंभ। पहले एक ध्वनि थी और फिर एक रूप था। नृसिंहदेव भगवान की जय। इसी तरह जब हम कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना शुरू करते हैं, तो पहले हम केवल ध्वनि का जप करते हैं, लेकिन फिर हम भगवान के रूप, गुण, लीलाओं को देखने लगते हैं। यह सब पवित्र नाम की ध्वनि में मौजूद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन असुरों के लिए यह आवाज आसानी है, वे भक्तों को हरे कृष्ण का जप करते हुए शांति से नहीं सुन सकते। जबकि हिरण्यकशिपु चारों ओर देख कर रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अशुभ गदगदाहट कहां से आ रही थी। भगवान एक अद्भुत प्राणी के रूप में एक सीध मानव स्तंभ से बाहर आए। हिरण्यकशिपु पूछे कि था, यह कौन है? आधा आदमी आधा शेर। इसके बाद यह वर्णन करते हैं कि नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु से कैसे युद्ध किया। उसने हिरण्यकशिपु को शरीर को गोद में रखकर फाड़ दिया, उसके अंतर्जय निकाली। एक भयानक दृश्य था। उग्र नृसिंहदेव, तब भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठे और किसी ने आपत्ति नहीं की, यहाँ तक कि देवता भी भयभीत थे और भगवान के पास जाकर उन्हें सम्मान देने से डरते थे। महान ऋषि नारद मुनि ने स्टोरी, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के नेतृत्व में देवताओं ने परम भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे बहुत क्रोधित थे। वहां इकट्ठे देवता भगवान के पास जाने से बहुत डरते थे और इसलिए भाग्य की देवी लक्ष्मी जी से इसे करने के लिए कहा। वह डरी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, मेरे बच्चे,
आओ और नरसिंहदेव को शांत करो। प्रहलाद ने आकर भगवान को प्रणाम किया। जब भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को देखा तो उन्हें अपने भक्त के लिए तीव्र प्रेम का अनुभव हुआ। प्रहलाद ने अनुभव को उठा लिया और अपना कमल उनके सिर पर रख दिया। और यह कहा जाता है प्रहलाद महाराज राक्षसों के साथ थे और इसलिए वे माया के प्रभाव में थे। लेकिन जैसे ही भगवान नरसिंहदेव ने अपने हाथ से प्रहलाद महाराज को सिर को स्पर्श किया, उन्होंने भौतिक इच्छाओं और कलमश से पूरी तरह छुटकारा पा लिया। प्रहलाद तुरंत आध्यात्मिक मंच पर थे और उनके शरीर में परमानंद के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। उनके हृदय भगवान के प्रेम से उमड़ पड़ा। उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय की गहराई में प्रभु के चरण कमलों को मजबूती से पकड़ लिया। मानव जीवन का यही अर्थ है, प्रभु के दर्शन करना। हमें भगवान को देखने के लिए भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। और जब प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आते हैं, हमें गले लगाते हैं, तो हम सभी कष्टों से पूरी तरह छुटकारा पाएंगे। और फिर प्रहलाद ने पूजा अर्चना की और ये प्रार्थना नम्रता से भरी हुई थी। उसने कहा, मैं असुर आपकी महिमा कैसे कर सकता हूँ? प्रहलाद महाराज ने किया प्रार्थना। सो इसे प्रयण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। प्रिय भगवान नरसिंहदेव, मैं देखता हूँ कि आसपास कई संत हैं, फिर भी वे केवल अपने उद्धार के बारे में सोचते हैं। शहरों में रहने वाले सामान्य लोगों की परवाह न करते हुए वे हिमालय या जंगल में जाते हैं, मौन व्रत लेते हैं और ध्यान करते हैं। वे दूसरों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं भौतिक दुनिया में सभी दुख की मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण का चिंतन किए बिना और आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस संसार के निवासियों को आपके चरण कमलों की शरण में लौटा आना चाहता हूँ। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह एक वैष्णव की इच्छा है जो भगवान का एक शुद्ध भक्त है, पर स्वयं भौतिक संसार में रहते हुए भी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वह केवल हमेशा कृष्ण भवनामृत में रहने की परवाह करते हैं। कृष्ण भवनावपि व्यक्ति नरक में भी सुखी रहेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, ने महानतम महान, मैं भौतिक दुनिया में रहने से बिल्कुल भी नहीं डरता। भक्ति जिस भी परिस्थिति में स्वयं को पाता है, वो कभी दुखी नहीं होता। Okay, now stop. Or we can speak more. Yeah, we can speak 5-10 minutes. This is Prahlad Maharaj story. You're not tired? Okay? अब कैसे? Okay? अच्छा? तब प्रहलाद महाराज ने इतनी स्तुति करनी शुरू की तो नरसिंहदेव इतने प्रसन्न हुए। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज क्या देख रहे थे? क्या क्या देख रहे थे? उग्र रूप? उग्र रूप नहीं, बहुत सुंदर, खूब सुंदर। भगवान नरसिंहदेव का रूप इतना सुंदर था। प्रहलाद महाराज इस रूप से इतने आकर्षित थे। नरसिंहदेव के दो रूप है, आप जानते हैं? नरसिंहदेव के दो रूप है, एक उग्र और दूसरा। उन्हें इतना क्रोध आ रहे हैं, केवल आसुर राक्षस ही वे इस प्रकार के उग्र नरसिंहदेव को देखते हैं। अब भक्त केवल उस रूप को देखते हैं। प्रहलाद महाराज और अन्य भक्त जैसे प्रहलाद महाराज वे हमेशा सोचते हैं, भगवान कितने सुंदर है, वे वहां कोई क्रोध नहीं देखते हैं, उन्हें वहां कोई डर नहीं दिख रहे। परमेश्वर में क्रोध और भय कैसे हो सकते हैं? किसी भक्त के लिए भगवान का रूप संभव नहीं है। भगवान के प्रिय भक्त हमेशा देखते हैं कि उनके भगवान बहुत सुंदर है। उनकी दृष्टि भक्ति दृष्टि बन गई है, उसकी दृष्टि भौतिक दृष्टि नहीं है।
तो अगर किसी के पास आध्यात्मिक दृष्टि होगी, भक्ति दृष्टि होगी, तो वह भगवान के रूप में क्रोध भय को कैसे देख सकते हैं? काजी, काजी? काजी ने मुस्लिम सैनिकों को वैष्णवों के मृदांक और करताल तोड़ने का आदेश दिया। वेस्ट बंगाल में वे हमेशा वैष्णवों को परेशान करते थे। और आखिर हुआ क्या, सिपाही बड़े चकित हुए और काजी ने क्या देखा, नृसिंहदेव भगवान शेर के रूप में काजी के पास आए। फिर उसने कहा, मेरे क्षेत्र में कोई भी संकीर्तन नहीं रोकेगा। आप मायपुर गए? मायपुर कौन? मायपुर काजी समाधि इस जगह काजी की समाधि है। वे महान वैष्णव बने, मुस्लिम और वैष्णव वर्शिप काजी। बोस प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव कृतयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव की गोद में बैठे थे, वे बहुत आनंदित थे। और तब नृसिंहदेव ने कहा, आपको किसी भी प्रकार का वरदान मांगना चाहिए जिससे आप सभी प्रकार की भौतिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आपको उस प्रकार का वरदान मांगना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो आपको मुझ पर दया करनी चाहिए ताकि मैं दास अनुदास बन जाऊं। दास अनुदास समझे? आपके दास का सेवा। और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया मुझे ऐसे वर दें कि मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं निकल जाए। नृसिंहदेव कह रहे हैं, तुम भक्त हो। एक भक्त कभी भी अपने दिल में अपनी इच्छा विकसित नहीं करते। तो भक्त भी कभी इस जीवन या अगले जीवन में सुख पाने की इच्छा विकसित नहीं करेंगे। लेकिन नृसिंहदेव ने कहा, मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, तुम्हें इन राक्षसों का राज्य बांधना चाहिए और राक्षसों की सारी संपत्ति तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हें उनका अनुरक्षक बनना चाहिए और फिर तुम अगले मनवंतर तक यहाँ रहोगे। प्रहलाद महाराज कुछ नहीं थे और नृसिंहदेव इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे निर्देशों को सुन पाओगे। परमात्मा के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर दूंगा। इस भौतिक संसार में अपनी कर्म गतिविधियों को करने के बाद और कुछ सुखाती अर्जित करने के बाद पिछली गतिविधियों और इसका आनंद लेता है। अंत में आप परम धाम को जाएंगे। बैक होम, बैक टू गॉड। जो लोग इस लीला को सुनेंगे और बोलेंगे या पढ़ेंगे मेरी लीला, वे अपने सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सभी जीवन के लिए बहुत दयालु है। इस कारण मैं तुझसे एक वरदान की विनती करता हूँ। वह मेरे पिता है जिन्होंने आपसे शत्रुता की थी, लेकिन मृत्यु के समय उन्हें आपकी कृपा दृष्टि मिली। आपकी कृपा दृष्टि से उनकी महिमा हुए है, क्योंकि तुमने उसके भाई को वाहन में मार डाला। वह तुम पर बहुत क्रोधित हुआ, इसलिए उसने सीधे तौर पर तुम्हारी निंदा की। अब समस्त देवों के स्वामी है, अब सभी नियंत्रक उनके नियंत्रक है। उन्होंने आपकी निंदा की और साथ ही उन्होंने भक्तों को इतनी परेशानियां दी। उसने अपने भक्त को सताया, यानी प्रहलाद अपने बारे में ही कहा रहता और उसके द्वारा उसने बहुत गंभीर अपराध किया है। कृपया उसका अपराध क्षमा करें। भगवान नृसिंहदेव ने कहा, आप साधु है, तुम साधु हो। हे मेरे प्रिय प्रहलाद, तुम्हारे पिता के साथ 21 पीढ़ी पहले तुम्हारे पिता शुद्ध हो गए थे, क्योंकि तुमने इस वंश में जन्म लिया था। और ये जिनास्ते पावन हो गए। तो वास्तव में श्री प्रभुपाद महाराज ने प्रहलाद महाराज की निर्देशन के बारे में लिखा है। वास्तव में उन्होंने क्या दिया है
इतना निर्देश सप्तम सर्ग में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। so much instructions ताकि हम उसे पढ़ सके, लेकिन आज यह संभव नहीं है। केवल बहुत सटीक रूप से, बहुत संक्षेप में हमने इसके बारे में बात की है, यह विस्तृत रूप से नहीं है। हम इसे केवल की प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। We repeat this prayer. ओम नमो भगवते तुभ्यं ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय सिंहाय परमात्मने परमात्मने मेरे भगवान ये मेरे भगवान 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए 6 ऐश्वर्य से भरे हुए हे सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति, हे परमात्मा, हे परमात्मा, सभी दुखों के संहार, सभी दुखों के हे संहार, सर्वोच्च व्यक्ति एक अद्भुत शेर और मनुष्य के रूप में मैं आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। His Grace Srivas Pandit Prabhu की Some questions?